Hello everyone, welcome back to this channel of Intelligent Classes. Today we are going to resume our trigonometric lecture series, okay, the lecture series for IIT JEE more precisely, and we were doing trigonometry, lecture number 3. This was a question given in the last lecture, and today is the fourth lecture of trigonometry in which we will discuss about compound angles in detail. Okay, we will solve some questions so that we will get an easy way, or we can solve those questions as fast as possible. Okay, so this was the question given in the previous lecture. Let's see how we'll solve this. Okay, if it is given sine alpha equal to 5 by 13 and cos beta is equals to minus 3 by 5, we are supposed to find the value of sine of alpha minus beta. Well, it's very easy, it's a formula based question definitely, but it is important to note that we are supposed to apply some concept also. Now, what is the concept? Just hear carefully. Here, nowhere it is given that alpha and beta are in the first quadrant. What does it mean? That we are not supposed to assume that alpha, sine alpha is positive, it means it is in first quadrant, or cos beta is negative, it may be in second quadrant, or it may be in third quadrant. Okay, let's have a look. If we are asked to find sine alpha minus beta, we should know this formula, that is sine of a minus b is sine a cos b minus cos a sine b. Okay, in the first term we are supposed to put the values directly. Okay, sine alpha is 5 by 13 times cos beta is minus 3 by 5. Now what about cos of alpha? If sine alpha is 5 by 13, we can calculate cos alpha with the help of a Pythagorean triplet, but I really advise to calculate it with the identity, that is sine square alpha plus cos square alpha. Cos square alpha is equals to 1. Now the reason behind this you will know it shortly. Okay, what we are supposed to find? Cos square alpha. It means cos alpha is equals to under root of 1 minus cos square alpha is equals to 1 minus sine square of alpha is equals, that will be 1 minus 5 by 13 whole square. After solving this, we will get this as 144 by 169. Okay, cos square alpha. But if you want to remove this square, we will apply a square root here and a plus minus sign here, because cos alpha can be plus 12 by 3 or minus 12 by 3, because we are not aware about the alpha, that where this angle is lying, in which quadrant it is lying. Okay, if it is lying in fourth quadrant, or if it is lying in first quadrant, then it will be positive. If alpha is lying in second quadrant, then it will be negative. Okay, because sine alpha is 5 by 13 and it can be in either first quadrant or second quadrant, because sine is positive in second quadrant. So we are not supposed to think too much about it. Okay, let's put the values directly, don't have to think too much. Plus minus 12 by 13. And if you talk about sine beta, similarly we will get plus minus 4 by 5. Okay, now some intelligent students will think that we should generate 4 cases from here, but believe me, it's not needed at all. Okay, why? Because plus 12 by 13 plus 4 by 5 will create a positive quantity, and again minus 12 by 13 minus 4 by 5 will create a positive quantity. If I take an alternate case, plus and minus, and here plus and minus, it will generate a negative quantity. So there are only in total 2 possibilities, that is either this term will be positive or this term will be negative. Okay, so this is 5 times 3 minus 15 by 13 5 is 65, and this is 12 times 4
48 plus minus 48 divided by 65. Okay, I just avoided to cancel each and everything because here I was getting the same LCM. Okay, here only two cases we are supposed to consider. Plus 48, if we consider plus 48, it will become plus and minus will become minus. So minus 15 minus 48 by 65, that is nothing but minus 63 by 65. Okay, or if we consider minus, it will become plus, that is minus 15 plus 48 divided by 65. What it will become? 33 by 65. Okay, so this is our final answer. Okay, now let's jump over to the next question. This was all about an homework question. Let's see what's there in the next question. What we are asked? We are asked, state whether the given expression is true or false. Okay, the expression is cos square theta plus cos square of theta plus alpha minus 2 cos theta cos alpha times cos of theta plus alpha is independent of theta. We are supposed to check whether it is independent of theta or not. Okay, students, so just give a try to this question. Just try to evaluate this expression. If you get an expression which doesn't include any term of theta, then it is true, otherwise it is false. So you need to carefully evaluate. Just give a try. I hope you have all have tried this question. Here we can observe we don't have any identity, this kind of thing. Okay, हमारे पास ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस अल्फा, पर हाँ हमारे पास एक चीज जरूर है. क्या है ये चीज? क्या है ये? 2 cos a cos b. क्या होता है? cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी. याद आया? cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी, है ना? तो चलो उसको एक्सपांड करके हम लिखते हैं, कुछ मिलेगा हमें. cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस अल्फा माइनस cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा प्लस cos ऑफ थीटा माइनस अल्फा. ओके, टाइम्स cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा. ओपन अप दिस ब्रैकेट. cos स्क्वायर थीटा plus cos square theta plus alpha minus, if you multiply, this will be cos square theta plus alpha, and this will become again minus cos of theta minus alpha cos of theta plus alpha. Okay, now here we are getting some good results. If we talk about this thing, cos a minus b cos a plus b. What is cos a minus b cos a plus b? That is cos square a minus sin square b. Okay, ये याद रखना है. cos square a minus sin square b. Okay, here a is theta and b is alpha. Okay, so if we open up, we will get sin square alpha. After evaluating, we observed that there is no term of theta. Hence, the given statement is true.
So let's move on to the next question. Cos square 73 minus sin square 47. Okay, plus cos 73 cos 47. We are supposed to find the value of this expression. Okay, so all students, just give a try. Identify this identities. Okay, that sounds rhyming. Identify the identities. तो चलो इसको कैसे सॉल्व करते हैं. देखो यहाँ पे ऐसा कुछ फॉर्म दिख रहा है cos स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर b, और यहाँ पे अभी अभी हमने जो सॉल्व किया वैसा ही कुछ दिख रहा है, खाली 2 मिसिंग है. तो 2 मिसिंग है तो क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, है ना. cos स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर b कैसे लिखा जाता है, cos ऑफ a प्लस b टाइम्स cos ऑफ a माइनस b, है ना. फिर प्लस में मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, है ना. 2 cos 73 डिग्री cos 47. ये करने के बाद क्या मिला, देखो 73 और 47 cos ऑफ 120 डिग्री, और cos ऑफ 73 माइनस 47 कितना होगा 26 डिग्री, प्लस 2 cos a cos b क्या होता है, cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b, है ना. cos ऑफ a प्लस b तो सेम होगा, प्लस cos ऑफ a माइनस b यहाँ पे भी सेम होगा, है ना. डिग्री लिख लो, है ना. अब डिग्री लिखने की ऐसे जरूरत नहीं है, इट इज बट ऑब्वियस अंडरस्टूड, है ना. cos 120 डिग्री कितना होता है, याद करो. cos 120 डिग्री माइनस हाफ होता है. मैंने कहा था कि वो टेबल पूरा याद रखना, है ना. लिख देते हैं चलो सब जगह, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए. यहां पे अगेन माइनस हाफ होगा, लिखते जाओ, है ना. यहाँ पे ये स्टेप पे आने के बाद ऐसा नहीं सोचना है कि अगर इसकी तो हम वैल्यू लिख ले तो ये cos 26 को कैसे सॉल्व करेंगे ना. बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं, बिल्कुल भी सोचना नहीं है. थोड़ा सॉल्व करके तो देखो, आपको बहुत कुछ मिलेगा, है ना. ये 1/4 और ये प्लस cos 26/2, है ना. ये दो कैंसिल हो गया और आंसर आ गया हमारा -1/4. ओके, इट वॉज क्वाइट ईजी. चलो दूसरा क्वेश्चन, ऐसा ही इजी क्वेश्चन हम दूसरा सॉल्व करते हैं. cos ऑफ 55 डिग्री प्लस cos 65 प्लस cos 175, क्या होगी इसकी वैल्यू, फाइंड करो, है ना. इट्स क्वाइट इजी. थोड़ा सा लॉजिकल सोचो और ट्राई करो इसको कम से कम स्टेप में सॉल्व करने का, है ना. दैट शुड बी योर ऑब्जेक्टिव, दैट कम से कम स्टेप में कैसे सॉल्व करें. ओके, सो जस्ट गिव अ ट्राई, पॉज द वीडियो एंड गिव अ ट्राई. ओके, आई होप यू हैव ट्राइड दिस क्वेश्चन. देखो cos c प्लस cos d सबको पता है ना, उसको पहले अप्लाई करो, जो दिखा अप्लाई कर दो. cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d/2. 55 प्लस 65 कितना होता है 110 और 10, 120/2 cos 60, है ना. और cos c माइनस d/2 कितना होगा 55 माइनस 65 माइनस 10, माइनस 10/2 -5. पर क्योंकि cos के अंदर मैं माइनस रखता हूं तो cos माइनस थीटा क्या बना देता है, cos प्लस थीटा, है ना. तो ये बन जाएगा cos 5 डिग्री, है ना. और ये इसको ऐसे कैसे रखता हूं, चलो देखते हैं. 2 × हाफ cos 5 डिग्री प्लस cos ऑफ 175. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना. अब आप ऐसा मत सोचना कि ये cos 5 प्लस cos 175 जो है उसको cos c प्लस cos d लगाओ, नहीं. यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है. देखो कैसे, मैं ऐसे लिख सकता हूं
कॉस ऑफ 175 को कॉस ऑफ 180 माइनस 5 डिग्री। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा हो सकता है कि नहीं हो सकता, है ना? तो इसको चेंज कर दो। कैसे? ऐसे लिख के कॉस 5 डिग्री माइनस कॉस 5 डिग्री दैट इज 0। आंसर आ गया हमारा, है ना? तो ऐसे सॉल्व करना है। नो डाउट इसको दूसरी बार CND फॉर्मूला लगाते तो भी आ जाता, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने ऐसे कुछ लगाया नहीं, है ना? यहाँ से हमें डायरेक्ट दिख रहा है, तो ऐसे अप्रोच होने चाहिए। चलो, जिस किसी का भी आंसर आ गया अच्छी बात है, इसका नहीं आया वो मेहनत करे। अब हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे, है ना, साइन और कॉस के पढ़े थे, tan रह गया था क्योंकि tan है ना बहुत स्पेशल है, इसके ऊपर क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। तो हम टेंजेंट की बात करते हैं, है ना? tan ऑफ a माइनस बी और tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। देखो क्या करना है, tan ऑफ a माइनस बी और tan ऑफ a प्लस बी क्या होता है? वी नो दैट tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ऑफ a प्लस बी डिवाइड बाय कॉस ऑफ a प्लस बी, है ना? तो इसको एक्सपांड कर दो। साइन ऑफ a प्लस बी क्या होता है? साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी होल डिवाइड बाय कॉस a कॉस बी माइनस साइन a साइन बी, है ना? ये आने के बाद ये जो कॉस a कॉस बी है ना, उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो ये टर्म से, है ना? क्यों? देखो कुछ होगा यहाँ पे, हमें कुछ मिलेगा। साइन ए कॉस ए कॉस बी से सबको डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? ये tan ए हो जाएगा, कॉस बी कैंसिल हो जाएगा। कॉस ए साइन बी को इससे डिवाइड किया हमने, है ना? तो कॉस ए और कॉस ए कट जाएगा, साइन बी बाय कॉस बी क्या हो जाएगा? tan बी हो जाएगा। फिर ये तो 1 हो गया, है ना? खुद को खुद ही से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे इसकी बात करें तो क्या होगा? साइन ए बाय कॉस ए tan ए होगा और साइन बी बाय कॉस बी tan बी होगा, है ना? तो हमें एक फॉर्मूला मिल गया tan ऑफ a प्लस बी का, है ना? देखो काफी इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट्स को ये याद रखना है। क्या होता है tan ऑफ a प्लस बी? tan a प्लस tan b होल अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अगर मैं b को माइनस b से रिप्लेस कर दूं तो मुझे दूसरा फॉर्मूला भी मिल जाएगा tan ऑफ a माइनस b का, है ना? b को क्या किया मैंने? माइनस b से रिप्लेस कर दिया, तो tan ऑफ माइनस b होता है माइनस tan b होल अपॉन, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी था, ये माइनस tan b और एक नेगेटिव दे दिया तो 1 प्लस tan a tan b, है ना? ये दूसरा आ गया, हमें इसको भी याद रखना है ना? और डेफिनेटली इसके हम क्वेश्चंस करेंगे, याद रह जाएगा, है ना? इसका और एक पॉपुलर फॉर्म है वो भी आपको याद रखना है, वो क्या है? देखो ध्यान से, π/4 वाला, π/4 प्लस ए और π/4 माइनस ए। इफ a इज इक्वल्स टू π/4, है ना, तो क्या होगा? या फिर एनी वन ऑफ द एंगल इज π/4, ऐसा लिख दो, है ना? तो क्या होगा? tan ऑफ π/4 प्लस b क्या होता है? देखो tan π/4 1 होता है, तो 1 प्लस tan b होल अपॉन 1 माइनस tan b, ऐसा होगा क्योंकि अगेन यहाँ पे वो 1 हो जाएगा। तो ऐसा कुछ फॉर्म दिखे ना क्वेश्चन के अंदर तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा आपका दिमाग चलना चाहिए, है ना? ऑल्सो tan ऑफ π/4 माइनस b क्या होगा? 1 माइनस tan b
होल अपॉन 1 प्लस tan b, है ना। सभी चीज़ें लिख लो। अब हम क्वेश्चन करते हैं। लिखिए 1 प्लस टेन ए टाइम्स 1 प्लस टेन बी इज इक्वल टू 2 इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्या प्रूव करना है? इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री है, देन प्रूव दैट 1 प्लस टेन ए 1 प्लस टेन बी इक्वल टू 2, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो जस्ट गिव अ ट्राई करो सभी स्टूडेंट्स कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पॉज द वीडियो एंड गिव अ ट्राई। ओके, आई होप यू हैव ट्राइड दिस क्वेश्चन। देखो अब ध्यान से देखो, तो इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 45 है, देन b इज इक्वल टू 45 माइनस ए, ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो ऐसा कर दो, 1 प्लस टेन ए कितना होगा? 1 प्लस टेन ऑफ b की जगह पे मैंने क्या लिखा है? 45 माइनस ए, है ना। 45 माइनस ए, यहाँ पे देखो 45 माइनस एंगल, है ना। ऐसा ही कुछ फॉर्म पर है, पाई बाय 4 मतलब 45। तो इसको एक्सपांड कर दो, 1 प्लस टेन ए, 1 प्लस क्या होगा? 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा, 1 माइनस टेन ए होल अपॉन 1 प्लस टेन ए, ऐसा कुछ होगा। सिंपल, 1 प्लस टेन ए टाइम्स एलसीएम ले लो, 1 प्लस टेन ए माइनस 1 माइनस प्लस 1 है, सॉरी, माइनस टेन ए होल डिवाइड बाय 1 प्लस टेन ए, ऐसा होगा कि नहीं? ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, है ना। फिर क्या मिलेगा? ये टेन है और ये टेन है, 1 प्लस 1 आ गया 2। सिंपल, इजंट इट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, है ना। इसके ऊपर हम और एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे जो आईआईटी में पूछा गया है। क्या पूछा गया था? देखो, इवैल्यूएट करना था 1 प्लस टेन 1 डिग्री, 1 प्लस टेन 2 डिग्री, कहाँ तक? 1 प्लस टेन 45 डिग्री, है ना। जस्ट गिव अ ट्राई। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। सभी स्टूडेंट इसको सीरियसली थोड़ा ट्राई करेंगे। हिंट दे देता हूँ, यही कॉन्सेप्ट का यूज़ करके इसको सॉल्व करना है ना। सो जस्ट पॉज द वीडियो एंड गिव अ ट्राई। आई होप यू ऑल हैव ट्राइड द क्वेश्चन। क्या आप देख सकते हो कि यहाँ पे 10 1 10 2 कहाँ तक जा रहा है? 45। मतलब इसके अंदर कितने टर्म्स है? 45 टर्म्स है। 45 कैसा नंबर होता है? ऑड नंबर होता है। अगर कोई भी ऑड नंबर हो तो हम पेयरिंग करते हैं, है ना। दो टर्म्स एक साथ सिलेक्ट करते हैं तो एक टर्म छूट जाएगी क्योंकि वो ऑड है ना। अगर 4 टर्म होती तो दो कैसे 2 पेयर बन जाते, 6 टर्म होती तो दो कैसे 3 पेयर बन जाते। पर अगर 7 टर्म होती तो 3 पेयर बनने के बाद एक टर्म छूट जाता। वैसे ही यहाँ पे एक टर्म छूटेगा,
है ना, और हमें उसको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमें उसकी वैल्यू पता है। और वो कौन सी है, वो टर्म कौन सी है, वो और कोई नहीं, वो यही है। क्योंकि हमें tan 45 की वैल्यू पता है, वो 1 है ना, बाकी किसी की वैल्यू पता नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 1 प्लस tan 1 और ये फर्स्ट टर्म, और यहाँ से एक सेकंड लास्ट टर्म उठा के यहाँ पे रखेंगे, वो है 1 प्लस tan ऑफ 44 डिग्री, है ना। ऐसा क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे देखो tan a 1 प्लस tan है 1 प्लस tan b, है ना, और a और b का सम कितना हो रहा था 45, यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है 1 और 45 होगा। तो ये एक टर्म मिली, ये एक टर्म मिली। वैसे कितनी टर्म्स मिलेगी, है ना, अगर 45 टर्म्स है उसमें से मैंने एक निकाल दी तो 44 टर्म्स बची। 44 टर्म्स में से मैं ऐसा पेयरिंग कर रहा हूं तो ऐसी कितनी पेयर मिलेगी, ऐसी 22 पेयर्स मिलेगी, है ना, 44 में से 22 पेयर्स मिलेगी। ओके, तो मैं ना पहले तो इसको अलग से लिख देता हूं, 1 प्लस tan 45, है ना, फिर 1 प्लस tan ऑफ 1 प्लस tan ऑफ 44 डिग्री, है ना, एंड सो ऑन। कितनी पेयर्स मिलेगी, 22 पेयर्स। अगर एक पेयर, है ना, ऐसी एक पेयर 2 को जन्म देता है तो 22 पेयर्स कितने 2 को जन्म देगा, 2 टू द पावर 22, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 टू द पावर 22। और यहां से इसको सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस tan 45 2, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 2 टू द पावर 23, है ना। ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ऐसा पूछा गया, फाइंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x एंड y। फाइंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x एंड y if x minus y is equals to pi by 4 and cot x minus cot y is equals to cot x plus cot y, है ना। चलो जस्ट गिव अ ट्राई टू दिस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। पहले मैं इसको ऐसा लिखूंगा 1 बाय tan x, इस इक्वेशन को 1 बाय tan y इज इक्वल्स टू 2। ये इक्वेशन दो वेरिएबल में है ना, मुझे उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो मैं x की जगह पे पाई बाय 4 प्लस वाई लिख सकता हूँ, है ना, जैसे यहाँ पे लिखा था, सब्स्टिट्यूट किया था, पाई बाय 4 प्लस वाई, है ना, और 1 बाय, ऐसा लिख सकते हैं डेफिनेटली। ये लिखने के बाद क्या करना है, वही हमारा रेगुलर वाला फॉर्मूला tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा जो हमने देखा था, अप्लाई कर दो। कैसे होगा, 1 बाय, ऊपर आ जाएगा ना माइनस वाली टर्म, लिख ही लेते चलो पूरा, है ना, प्लस 1 बाय tan y इज इक्वल टू 2। सब कुछ tan y में आ गया, है ना, सिंपल। अब देखो 1 माइनस tan y, देखो मैं ty लिख रहा हूं, है ना, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। tan y को मैंने ty लिख दिया। एलसीएम ले लो, ty माइनस ty स्क्वायर प्लस 1 प्लस ty इज इक्वल्स टू 2ty 1 प्लस ty, है ना। यहां से भी 2ty आ जाएगा, 2ty माइनस ty स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2ty प्लस 2ty स्क्वायर,
है ना, टू tan y का स्क्वायर। इसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये इस तरफ आ जाएगा, तो 3 tan स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 1 ऐसा होगा। 3 tan स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 1, तो tan y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √3 ऐसा होगा। यहां पे मैं लिख देता हूं, tan y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3, सॉरी, tan y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3 ऐसा होगा। और अगर x y की वैल्यू हम निकाल ही लेते हैं, है ना, y की वैल्यू क्या निकलेगी, अगर प्लस 1/√3 लेता हूं मैं और मिनिमम वैल्यू पूछा है ना, तो वो कितना होगा, π/6। माइनस 1/√3 का पूछा होता है ना, अगर ऐसा पूछा होता कि हाँ दोनों सब वैल्यूज फाइंड करनी है, तो y की दूसरी वैल्यू कौन सी होती, π/2, पाई माइनस π/6 ऐसा होगा। tan ऑफ पाई माइनस π/6 माइनस tan π/6 होता है, तो पाई माइनस π/6 कितना होता है, 5 π/6 होता है। तो आप ही खुद बताओ कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू पूछा है ना, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू यही होगी। y की वैल्यू हमें π/6 मिली है, वो यहाँ पे रख दो, है ना, तो वो π/4 प्लस π/6 कितना होगा, 10π/24 यानी कि 5π/12 x की वैल्यू, है ना। यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 5π/12 यानी कि 75 डिग्री। ओके, हमें दो वैल्यूज मिल गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पूछा था, है ना, इसीलिए हमने छोटी और पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर की। गिवन है इफ x प्लस y इज इक्वल्स टू π/4 देन फाइंड tan ऑफ x प्लस 2y, ऐसा भी कुछ देके रखा है 3। पूछा है tan x इंटू tan y कितना होगा, tan x इंटू tan y की वैल्यू पूछी है ना। सभी स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे, जस्ट गिव अ ट्राई टू दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप यू हैव ट्राइड द क्वेश्चन। देखो इसके अंदर से ना मैं कुछ निकालना चाहता हूँ, क्या, tan ऑफ x प्लस y ऐसा लिख सकते हैं। 2y को मैंने तोड़ दिया, x प्लस y की जगह पे π/4 रख दिया, है ना। tan ऑफ π/4 प्लस y इज इक्वल टू 3, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अगेन मैंने tan y को ty लिख दिया है ना, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। जल्दी से हम लिख के क्वेश्चन के लिए आगे बढ़े, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे बढ़े। ऐसा कुछ होगा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा ये 4ty इज इक्वल्स टू 2, तो ty की वैल्यू आ जाएगी 1/2, है ना। अब अप्लाइंग tan ऑन बोथ द साइड्स, इस इक्वेशन की बात करें, tan ऑफ x प्लस y इज इक्वल्स टू tan π/4, है ना। तो इसको कैसे एक्सपांड कर सकते हैं, tan x प्लस tan y होल अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y, है ना। tx मतलब tan x है, ty मतलब tan y है, और ये तो हो गया 1। ty की वैल्यू यहाँ से डाल दो, कितना है 1/2 है ना,
तो tx प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस tx/2। मैंने डायरेक्टली है ना यहाँ पे ty की वैल्यू डाल दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। 1 प्लस 1/2 3/2 होता है, और ये 1 माइनस हाफ, ये हाफ इधर चला गया तो वो हाफ होगा। tan x और tan y की वैल्यू हमें मिल गई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और हमें मिल जाएगा tan x इंटू tan y इज इक्वल्स टू 1/6, है ना। दिस इज अवर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ही पकड़ते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट कंपाउंड एंगल्स। अब हम आते हैं सब मल्टीपल एंगल्स और हाफ एंगल्स पे, है ना। मल्टीपल एंगल्स, हाफ एंगल्स, जिसके अंदर हम डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, ऐसे सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, है ना, टाइटल डाल दीजिए। इसके अंदर हम क्या क्या फाइंड करने वाले हैं, ध्यान से देखो। थीटा, 2 थीटा, 3 थीटा, है ना, फिर θ/2, θ/3, ऐसे सब फाइंड करेंगे, है ना। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि कहाँ से क्या क्या आया। मैं एक शॉर्ट प्रूफ आपको ज़रूर बताऊंगा, है ना, और इसको कैसे याद रखना है वो भी हम देखेंगे। कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, है ना। चलो तो हम किससे स्टार्ट करते हैं, साइन ऑफ 2 थीटा, कॉस ऑफ 2 थीटा और टेन ऑफ 2 थीटा से। उसमें से क्या क्या फॉर्मूला डिराइव हो रहे हैं। सबसे पहले मैं साइन ऑफ 2 थीटा की बात करूं। साइन ऑफ 2 थीटा इज नथिंग बट साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा। तो यहाँ पे वही जो हमने सीखा है वही फॉर्मूला लगेगा, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो वो सेम ही आएगा, है ना, बीच में प्लस है तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। क्या हम यहाँ पे सब फॉर्मूला लिखते जाए, है ना, थोड़ा अच्छा लगेगा, आपके लिए भी थोड़ा कलेक्शन जैसा लगेगा कि हाँ हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। पहला फॉर्मूला हमने क्या देखा, साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं। कैसे, इसमें है ना सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, है ना, इसमें सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। सेक स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो, ये सेक थीटा एक है ना कॉस को लेके भाग जाएगा, है ना, कैंसिल हो जाएगा मतलब, और एक साइन के नीचे कॉस बन के खड़ा रह जाएगा। लिख देता हूं, है ना, तो ये तो 1 हो गया। सेक स्क्वायर थीटा को ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये जो हमारा फॉर्मूला बना साइन 2 थीटा का, वो 10 के टर्म्स में बना कि नहीं बना, है ना। तो यहां से हमें और एक फॉर्मूला मिला, कौन सा, देखो ध्यान से, साइन 2 थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, इसी को 2 टेन थीटा होल अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना।
अब चलो हम कॉस पे अटैक करते हैं। कॉस बहुत ही एवरग्रीन है ना, कॉस में बहुत मज़ा आएगा। कॉस ऑफ 2 थीटा आप खुद ट्राई करो। कॉस ऑफ 2 थीटा मतलब उसको भी ऐसे ही करेंगे, कॉस ऑफ थीटा प्लस थीटा करके, है ना। कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, है ना। तो आप प्लीज़ अपनी तरफ से ट्राई कीजिए कि कॉस 2 थीटा का क्या फॉर्मूला आप लिख सकते हो। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कॉस के कैसे कैसे हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, है ना। सो जस्ट पॉज द वीडियो एंड गिव अ ट्राई। आई होप यू ऑल हैव ट्राइड, है ना, कॉस का। खाली ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करने, थ्योरी का भी थोड़ा साउंड नॉलेज होना चाहिए कि कैसे इसका फॉर्मूले का जन्म हुआ। कॉस थीटा की बात करें तो वैसे ही होगा, कॉस ऑफ थीटा प्लस थीटा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे और भी तो थीटा ही है, तो ऐसा लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। सभी स्टूडेंट्स का इतना तो आ ही गया होगा। इसके बाद भी हम कुछ और सोच सकते हैं, वो क्या है कि सभी को कॉस के अंदर कन्वर्ट कर दे हम। तो ये साइन स्क्वायर थीटा है, उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है ना। और वो लिखने के बाद आपके पास ऐसा कुछ आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं सबको कॉस में कन्वर्ट करता हूं तो साइन को बुरा नहीं लगेगा, वो भी कहेगा ना कि एक फॉर्मूला मेरा भी बनाओ कि सबको साइन में कन्वर्ट कर दो। तो हम बोलते ठीक है बना देते, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दो, है ना। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, है ना। जो बच्चे यहाँ पे अटके कि ये कैसा है, आप खुद इवेल्युएट करना, है ना। साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में रखना, तब जाके कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। जिसका नहीं आ रहा है उसमें वो मिस्टेक हो रही होगी, है ना, मैं अभी से बता दे रहा हूँ। तो हमने ये 3 फॉर्मूला देखे कॉस 2 थीटा के, ये दोनों तो इंटर रिलेटेड है ना, इसके अंदर से ही जन्म लिया है और कन्वर्टिबल है। ये मेन था, ये हमें याद रखना था। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूला बार में। कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और तो और हमें ना ये दोनों फॉर्मूला के साथ बहुत कुछ खेल सकते हैं, है ना। कैसे खेलना है देखो, अगर ये -1 मैंने इस साइड ले आया, है ना, इस साइड मतलब ये दिस इज नथिंग बट cos 2 थीटा, -1 मैं इस साइड लाता हूं तो ये 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाता है। तो आपको ऐसा याद रखना है कि 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना। फॉर्मूला में वगैरह में बहुत सारी जगह पे काम लगेगा, ये बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें cos 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा या फिर cos 2 थीटा cos 4 थीटा ऐसा कुछ दिया होगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम लगेगा। फिर इसमें भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, देखो इसमें ये 1 का है ना, उससे डालोगे ना तो वो मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो इसमें क्या करना है पता है, खुद cos 2 थीटा को यहाँ पे ले आओ और 2 साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे ले आओ। तो हमें इससे ये पता चला कि 1 माइनस cos 2 थीटा जो है ना, वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, समझ में आया। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है, और ये स्ट्राइक होने चाहिए। जैसे ही 1 प्लस कॉस ऑफ सम एंगल है तो ये स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि हाँ भाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा। इससे और एक ऑब्जर्वेशन निकलता है, वो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 1 प्लस कॉस सम एंगल है इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर सम एंगल है, तो ये जो एंगल है ना उसका ये हाफ है, समझ रहे हो। यहाँ पे जो कुछ भी एंगल है उसका ये हाफ है, तो इट इज फ्रॉम योर साइड दैट यू आर सपोज टू ऑब्जर्व दिस थिंग्स केयरफुली। तो चलो इसको हम लिख देते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। और भी हम बहुत कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे, इसको डिवाइड कर दो, है ना,
क्योंकि मुझे यहाँ से है ना कुछ tan जैसा दिख रहा है, मुझे कैसा दिख रहा है, मुझे tan जैसा कुछ दिख रहा है टेंजेंट का। तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद मुझे क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे करना है, मुझे tan स्क्वायर चाहिए। तो tan स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। बोलो, डेफिनेटली हम लिख सकते हैं। कहीं पे भी tan स्क्वायर थीटा लिखा हो तो हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करने आना चाहिए। और तो और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर ऐसा कहीं पे भी फॉर्म आए 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस और यहाँ पे एंगल सेम है, तो इसके अंदर कन्वर्ट करना हमें आना चाहिए। दैट वॉज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, है ना। और तो और जैसा हमने यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया ना, वैसे ही यहाँ पे भी हम सेक स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर सकते थे, है ना, कर देते हैं इनफैक्ट। क्या ही रहा देखना, cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। सेक स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। जैसे हमने डिनोमिनेटर में है ना tan का एक्सप्रेशन बनाया था, वैसे ही यहाँ पे भी टेंजेंट का एक्सप्रेशन बनाएंगे। cos स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। और साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर के नीचे कॉस स्क्वायर आ गया, ऐसा बोल सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल होता है ना कॉस स्क्वायर का, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा, है ना। तो ये क्या आ गया, कॉस ऑफ 2 थीटा क्या होता है अगेन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सारे जितने भी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं ना, इट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर 11th, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर 12th ऑल्सो, है ना। जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, जो 11th 12th की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर 12th ऑल्सो, है ना। बहुत सारे चैप्टर्स में ये फॉर्मूला काम लगेंगे। इतने तो हमने देख लिए, है ना, साइन और कॉस की सारी बातें हमने देख ली। अब हम टेंजेंट की बातें करते हैं, है ना। टेंजेंट छूटना नहीं चाहिए। चलो tan ऑफ 2a की बातें करते हैं। ये मैं ऐसे ही रखूंगा क्योंकि इसके अंदर हम फॉर्मूला इनपुट करते जाएंगे, है ना। फॉर्मूला बार है हमारा वो। देखो tan ऑफ 2a मुझे फाइंड करना है। या फिर tan 2 थीटा मुझे फाइंड करना है, थीटा रख लो, है ना। तो अगेन वही होगा tan ऑफ थीटा प्लस थीटा, सेम फॉर्मूला लगा दो, tan a प्लस tan b होल अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा होल अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो दिस वॉज सिंपल। 10 में तो ये सब आ गया, पर और तो और है ना, हमें बहुत कुछ डिराइव्ड फॉर्मूला भी मिल सकते हैं। कैसे, देखो ध्यान से। अगर मैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा, है ना, डिवाइड बाय साइन 2 थीटा करूं, अगर मैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय साइन 2 थीटा करूं तो मुझे कुछ मिलेगा। देखो tan 2 थीटा का तो मैंने लिख लिया, लिख लेता हूं चलो, पर मुझे और कुछ भी चाहिए। और कुछ क्या चाहिए, देखो मैंने यहां से ना 1 माइनस कॉस 2 थीटा किया डिवाइड बाय साइन 2 थीटा किया। 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, देखना ध्यान से, होल डिवाइड बाय ये क्या होता है साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ध्यान से देखो,
यहाँ से एक साइन उड़ जाएगा, है ना, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा ये मिल जाएगा टेन थीटा, है ना। तो हमने क्या किया, डबल एंगल की मदद से हमने टेंजेंट की सिंगल एंगल की वैल्यू निकाली, है ना। तो कहीं पे भी आपको टेन थीटा दिखाई दे तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ दिखाई दे तो उसको टेन में कन्वर्ट करना हो, है ना। क्वेश्चन चाहता है कि आप उसको टेन में कन्वर्ट करो, तो ऐसा भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये याद रखना है। यहाँ पे मैं फॉर्मूला बार में लिख देता हूँ, वन माइनस कॉस टू थीटा और यहाँ पे वन माइनस कॉस टू थीटा की जगह पे अगर मैं वन प्लस कॉस टू थीटा लिख दूं, है ना, तो क्या मिलेगा मुझे, देखो, वन प्लस कॉस टू थीटा होल अपॉन साइन टू थीटा। वन प्लस कॉस टू थीटा क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा होल बाय टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये मिल जाएगा कॉट थीटा, है ना। ये कॉट की वैल्यू थी। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर हमने चेंज किया। दूसरा, मैं नया नंबर नहीं डालूंगा फॉर्मूला में, है ना, कोई ऐसे गिनेगा भी नहीं कि हो इतने सारे फॉर्मूला, है ना। खाना खाते वक्त रोटियां और ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले कभी गिनने नहीं चाहिए, ओके, ये याद रखना है सबको। और एक इम्पॉर्टेंट है, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा का एक बहुत ही खूबसूरत फॉर्मूला है, वो टू कॉट टू थीटा होता है। वो इतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, पर हाँ अगर वो याद हो ना तो बहुत कुछ काम लगता है ना। उसके ऊपर हम क्वेश्चन भी करेंगे अभी। कॉट थीटा माइनस टेन थीटा क्या होता है हकीकत में, दोनों को कॉस साइन में कन्वर्ट कर दो। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसा होगा। और यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा ऐसा कुछ होगा। टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो ज़रा, टू से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो ये टू कॉस टू थीटा ऐसा हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस टू थीटा। यहाँ से देखते रहो अगर किसको डाउट है। और यहाँ पे इसको टू मिल गया तो ये साइन टू थीटा मिल जाएगा कि नहीं, है ना। ये साइन टू थीटा हो गया और ये किसकी वैल्यू हो गई, ये टू कॉट टू थीटा इसकी वैल्यू हो गई, है ना। तो ऐसा भी हम यहां से लिख सकते हैं, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू टू कॉट टू थीटा, है ना। चलो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इजी क्वेश्चंस करेंगे और फिर लेक्चर कंक्लूड करेंगे, है ना, आज का। ये कुछ बेसिक फॉर्मूला इसकी मदद से फाइंड करना है ना। कॉस ए इक्वल्स टू 1/3 दिया हुआ है और फाइंड करना है कॉस ऑफ 2a। फिर दूसरा क्वेश्चन है, साइन ए की वैल्यू दे रखी है 2/5 और कॉस 2a फाइंड करना है ना। सही सही सबको फाइंड करना है। साइन ए इज इक्वल्स टू 3/5 दे रखा है और साइन 2a फाइंड करना है। फिर tan a इज इक्वल्स टू 1/3 दे रखा है और tan 2a की वैल्यू फाइंड करनी है। tan a की वैल्यू दे रखी है 1/7
और आपको फाइंड करना है sin 2a, है ना। फिर cos a की वैल्यू दे रखी है 4/5, आपको फाइंड करना है tan of a/2, है ना। ये थोड़ा सा अलग है। ये सारे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको एक डबल एंगल फॉर्मूला आ गया है ना, तो आपको हाफ एंगल फॉर्मूला भी आ चुका है ना। आप खुद टेस्ट क्यों नहीं करते खुद का? देखो, अगर sin 2 थीटा, मैं एक ही एग्जांपल दूंगा, है ना, एक एग्जांपल दूंगा, सारे जितने भी डबल एंगल फॉर्मूला है ना हाफ एंगल में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे? देखो, अगर sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा ऐसा दिया गया है ना, तो यहाँ पे सिंगल एंगल है, थीटा ही है, और ये डबल हो गया, है ना। मतलब ऐसा कह सकते हैं, जब यहाँ पे डबल होता है तब यहाँ पे सिंगल होता है ना। तो इसको ऐसा भी कह सकते हैं, 2 थीटा को आप रिप्लेस कर दो थीटा से, तो जो थीटा होगा वो θ/2 मिल जाएगा, है ना। ऐसा कन्वर्जन चलेगा कि अगर 2 थीटा यहाँ पे थीटा देता है, तो अगर मैं 2 थीटा की जगह पे यहाँ पे थीटा रख दूं तो ये θ/2 मिल जाएगा डेफिनेटली, इसका आधा होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि साइन थीटा की जगह पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 sin θ/2 cos ऑफ θ/2, है ना। हमने पिछले लेक्चर में भी कुछ ऐसा डिस्कशन किया था कि यह ना एंगल की बातें हैं, इसको एंगल में ही रहने दो। जैसे घर की बातें घर में रहती है ना, वैसे ही एंगल की बातें एंगल के अंदर रहने दो, इसको बाहर मत निकालना, है ना। ऐसे 2 कैंसल मत कर देना, ये एंगल है। मतलब फॉर एग्जांपल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री लो ना, तो 60/2 30 ऐसा sin 30 होगा, है ना। तो ऐसा हर एक एंगल हम लिख सकते हैं। cos थीटा की जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं cos स्क्वायर θ/2 माइनस sin स्क्वायर θ/2, 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1 और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर θ/2। cos थीटा की जगह पे हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2। सब जगह पे हम ये लॉजिक लगा सकते हैं। और तो और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना। ये हमने हाफ का ऑब्जर्व किया, दूसरी क्या चीज ऑब्जर्व की हमने? दूसरी चीज ये ऑब्जर्व की कि यहाँ पे 2 थीटा होता है तो ये थीटा हो जाता है। सेम चीज अगर यहाँ पे 2 थीटा की जगह पे थीटा हो रहा है, तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहाँ पे 4 थीटा हो तो वो 2 थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। अगर यहाँ पे 4 थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि साइन ऑफ 4 थीटा इज इक्वल टू 2 sin 2 थीटा cos ऑफ 2 थीटा, है ना। तो ये रिलेशन जो है ना वही आपको ऑब्जर्व करने हैं और कुछ नहीं करना है। ओके, चलो हम ये बेसिक क्वेश्चन कुछ सॉल्व कर देते हैं। यही मैं सॉल्व कर देता हूँ, ये आप लिख लेना, है ना। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लिख लेना, भले आप अभी समझ गए हो पर फिर भी लिख लो तो बहुत बेटर होगा, है ना। चलो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर cos a इज इक्वल टू 1/3 दे के रखा है ना, तो cos 2a की वैल्यू बताइए, cos 2a की वैल्यू पूछिए। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 कितना होगा 2/9 माइनस 1, है ना। cos a की जगह पे मैंने 1/3 लगा दिया और ये हो जाएगा -7/9, है ना। दूसरा क्वेश्चन देखो, sin a 2/5 है तो cos 2a की वैल्यू पूछिए। तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, cos 2a 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a ऐसा कुछ होगा, है ना। 1 माइनस 2 इंटू 4/25, है ना। ये कितना होगा 25 माइनस 8/25 और वो होगा 13/25। अब क्या पूछा है देखो, sin 2a पूछा है, sin a की वैल्यू दे के रखी है। तो sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a
कॉस ए, है ना। साइन ए की तो मैं वैल्यू डाल दूंगा 2 साइन ए मतलब 3/5, कॉस ए की जगह पे है ना ±4/5 आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है कि ए कौन से क्वाड्रेंट में है। सेम चीज़ यहाँ पे भी हो सकती थी पिछले 2 क्वेश्चन में, पर क्यों मैंने इंक्लूड नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर के टर्म्स थी, है ना, तो वो माइनस होता फिर भी वो प्लस हो जाता। तो यहाँ पे क्या आया 3 6 6 4 24 ±24/25, है ना। फिर इस क्वेश्चन को देखो, tan a की वैल्यू दे रखी है, tan 2a पूछा है, तो फॉर्मूला लगा दो tan 2a इज इक्वल्स टू ये वाला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो 2 इंटू 1/3 होल अपॉन 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, वो होगा 2/3 होल अपॉन 8/9 इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू 9/8, 3 1 जा 3 3 जा 2 1 जा 2 4 जा, आंसर आएगा 3/4, है ना। फिर देखो यहाँ पे क्या पूछा है, tan a देख रखा है और sin 2a की वैल्यू पूछी है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या यूज करना होगा, sin 2a की वैल्यू पूछी है तो हमें sin 2 थीटा का फॉर्मूला tan के टर्म्स में पता होना चाहिए, है ना, तब जाके हमें बहुत इजीली आंसर मिल जाएगा। तो sin 2a क्या होगा 2 tan a होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, that will be nothing but 2 into 1/7 होल अपॉन 1 प्लस 1/49, है ना। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2/7 मल्टीप्लाई बाय ये कितना होगा 50/49 होगा, विच विल बी 49/50 यहाँ पे, है ना। 7 1 जा 7 7 जा 2 1 जा 2 25 जा, आंसर आ जाएगा 7/25, है ना। अब इसकी बात करते हैं, देखो cos a की वैल्यू देके रखी है और tan ऑफ a/2 की वैल्यू पूछी है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमने एक फॉर्मूला लिखा था cos और tan के टर्म्स में, है ना। ये देखो अगर 1 माइनस cos 2 थीटा बाय sin 2 थीटा ऐसा कुछ दिया गया है इज इक्वल्स टू tan थीटा है, तो cos का डबल यहाँ पे सिंगल होगा, है ना। यहाँ पे हम cos में डबल एंगल डालते हैं तो यहाँ पे सिंगल एंगल डाल रहे हैं, तो वैसे ही हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ पे tan ऑफ a/2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। tan ऑफ a/2, है ना, यहाँ पे a/2 है तो यहाँ पे डबल हो जाएगा, देखो यहाँ पे थीटा था तो यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस cos ऑफ a हो जाएगा होल बाय साइन ऑफ 2 थीटा, है ना, यहाँ पे भी डबल होगा, तो यहाँ पे भी ऐसा लिखेंगे हम साइन ऑफ a। जहाँ कहीं पे भी साइन ऑफ a या फिर कॉस ऑफ a ऐसा कुछ आ रहा है ना, तो हमें क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट लगाना होगा। यहाँ पे भी हम क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, पर देखो स्क्वायर हो जा रहा है ना, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है कि अंदर हम माइनस डालें कि प्लस डालें। 1 माइनस कॉस a मतलब 1 माइनस 4/5 ऐसा डालेंगे, और यहाँ पे साइन a की जगह पे प्लस माइनस 3/5 में लिखूंगा। ये सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 1/5 प्लस माइनस यहाँ पे 1/5 मल्टीप्लाई में 5/3 ऐसा होगा, है ना। 5 से 5 कैंसिल और आंसर आ गया हमारा प्लस माइनस 1/3। Okay, so this is it for today. Thank you for watching this lecture. If you like the video, please like all the videos, है ना, please see all the videos, वीडियो को लाइक करना, and if you haven't subscribed to our channel, please subscribe to our channel. Thank you for watching this lecture and stay tuned and have a nice day.